Hello guys, today's our topic is erythropoiesis. So first we'll understand the meaning of erythropoiesis. So erythro means red blood cells and poiesis mean formation or making. So erythropoiesis means formation of red blood cells. Okay. First we will see definition. Okay. So what is definition? Erythropoiesis is process of origin, development and maturation of erythrocytes. So origin, development and maturation of erythrocyte. So what is hemopoiesis? Hemopoiesis or hematopoiesis is process of origin, development and maturation of all blood cells. So hemopoiesis means all blood cells and erythropoiesis means origin, development and maturation of only erythrocyte. Okay, clear? So now we'll see site of erythropoiesis. So first we'll see in fetal life occurs in 3 stages. Okay, first is mesoblastic stage. During first 2 months of intrauterine life, red blood cells are produced from mesenchyme of yolk sac. So what is yolk sac? So membranous structure outside the embryo is called as yolk sac. Clear? So first stage was mesoblastic during first 2 months. Okay. So second is hepatic stage from 3rd month. Okay. First 2 months was mesoblastic. Now from 3rd month of intrauterine life, liver is main organ that produce red blood cells. Okay. Spleen and lymphoid organs also involved, but liver is main organ. Third is myeloid stage during last 3 months of intrauterine life. First 2 months was mesoblastic, from 3rd hepatic, now during last 3 months of intrauterine life. Red blood cells are produced from red bone marrow and liver. Okay. So in hepatic state, as name suggests, liver is the main organ that produce red blood cells. Okay. So here fetal life complete. Okay. Now we'll see in newborn, children and adults. Red blood cells are produced only from red bone marrow. Okay. So first, up to age of 20 years, red blood cells are produced from red bone marrow of all bones. Okay. Long bones and all flat bones. Here we are talking about up to age of 20 years. Okay. Now, after age of 20 years, red blood cells are produced from membranous bones like vertebra, sternum, ribs. Here we are talking about after age of 20 years. Okay. Iliac bones, skull bones and from ends of long bones. Okay. After 20 years of age, shaft of long bones becomes yellow bone marrow. Red bone marrow become yellow bone marrow. Why? Because of fat deposition and red bone marrow loses its erythropoietic function. So now it is called as yellow bone marrow. Clear? In adults, liver and spleen may produce blood cells if bone marrow is destroyed or fibroids. Clear? In adults, liver and spleen may produce blood cell if bone marrow is destroyed. Bone marrow is almost equal to liver in size and weight. Okay. It is also as active as liver. Though bone marrow is site of production of all blood cells, comparatively 75% of bone marrow is involved in production of leukocyte. So bone marrow में ज़्यादा production क्या होता है? Leukocyte. Okay. And only 25% is involved in production of erythrocyte. So, but still leukocyte are less in number. 75% क्या produce हो रहा है? Leukocyte and only 25% erythrocyte.
स्टिल ल्यूकोसाइट हमारे टोटल ब्लड में लेस है. वाई? कितना है? तो रेशियो क्या है? 1:500. वाई? बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्पान. रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पान कितना होता है? सो 120 डेज. और WBC का कितना? 1 to 10 डेज. सो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? लाइफ स्पान. प्रोडक्शन किसका ज़्यादा हो रहा है? ल्यूकोसाइट का, बट उनका डिस्ट्रक्शन जल्दी हो जाता है बिकॉज उनकी लाइफ स्पान शॉर्टर है. क्लियर? So now we'll see process of erythropoiesis. So first, what is stem cells? Stem cells are primary cells capable of self-renewal and differentiate into specialized cells. Okay. So what is hemopoietic stem cells? Hem means blood. Okay. Hemopoietic stem cells are primitive cells in bone marrow. Okay. Primitive means first cells. Poietic means poiesis means formation. Okay. Hem means blood. Okay. Which give rise to blood cells. So what is hemopoietic stem cells? Hemopoietic stem cells are primitive cells in bone marrow which give rise to blood cells. Clear? So hemopoietic stem cells in bone marrow are called as uncommitted pluripotent hemopoietic stem cells. Why uncommitted? We'll see further. So first we'll see what is pluripotent hemopoietic stem cells. Okay. It is defined as a cell that can give rise to all types of blood cells. Okay. Whether it is red blood cells, white blood cells or platelets. Okay. So in early stages, hemopoietic stem cells are not designed to form a particular type of blood cells. अब अर्ली स्टेजेस में हमको नहीं पता होता कि इन सेल में से कौन सा ब्लड सेल बनने वाला है, WBC, रेड ब्लड सेल या प्लेटलेट्स, हमको नहीं पता होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अनकमिटेड. ओके. इन अर्ली स्टेजेस hemopoietic stem cells are not designed to form a particular type of blood cells. So not possible to determine blood cells to be developed from these cells. Okay. Hence name uncommitted pluripotent hemopoietic stem cells. Okay. So clear? So what is best source of these cells? Best source of these cells is umbilical cord blood. Okay. So usually in childhood. Okay. When cells are designed to form a particular type of blood cells, the committed pluripotent hemopoietic stem cells are called as now committed. Okay. जब हमको पता चल जाएगा कि इसमें से यही वाला सेल बनेगा तो अनकमिटेड को हम क्या बोलने लगेंगे? कमिटेड. क्लियर? सो committed pluripotent hemopoietic stem cells is defined as cell which is restricted to give rise to one group of blood cells. Clear? Now we'll see committed pluripotent hemotype. उसके कितने टाइप्स से? 2 types. Okay. First is lymphoid stem cells which give rise to lymphocytes. Okay. Lymphoid stem cells प्रोड्यूस करेंगे, सो lymphocyte and cells. Okay. Second है coloniform blastocyte which give rise to myeloid cells. So myeloid cells क्या होते हैं? Myeloid cells are blood cells other than lymphocytes. अदर देन लिम्फोसाइट्स, बाकी सारे सेल्स को हम क्या बोलेंगे? माइलॉइड सेल्स. ओके. सो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स. सो नाउ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स. अब इसके हम डिफरेंट यूनिट देखेंगे. तो फर्स्ट यूनिट कौन सा है? तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट. तो नाम से पता चलता है सेल्स ऑफ दिस यूनिट डेवलप इनटू इरिथ्रोसाइट. क्लियर? Colony forming unit granulocyte and monocyte. So cells of this unit give rise to granulocyte and monocyte. Clear? Now colony forming unit megakaryocyte. So they will give rise to platelets. Clear? First uncommitted किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कमिटेड. तो अब हमको पता चलेगा कि ये आगे जाके
कौन से सेल का प्रोडक्शन करेंगे, कौन से ब्लड सेल का प्रोडक्शन करेंगे. सो लिम्फोइड स्टेम सेल गिव राइज टू lymphocyte and natural killer cells. कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट, तो उसमें से क्या बनेगा, रेड ब्लड सेल्स. क्लियर. एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट. तो अभी ग्रेन्युलोसाइट में कितने के सेल होते हैं, 3. फर्स्ट न्यूट्रोफिल, सेकंड बेसोफिल एंड थर्ड इओसिनोफिल. ओके. एंड मोनोसाइट. एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकार्योसाइट. दे विल गिव राइज टू प्लेटलेट्स. क्लियर. हमने क्या देखा अभी, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट एंड मेगाकार्योसाइट. क्लियर. सो अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस. फर्स्ट है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, उसको और क्या बोलेंगे हम, और मेगालोब्लास्ट. सो फर्स्ट सेल डिराइव्ड फ्रॉम colony forming unit erythrocyte. Okay, so it is first cells. So larger in size with diameter of about 20 mu. Okay, with diameter of about 20 mu. Its nucleus is large and occupies cell almost completely. अब हमने देखा है कि रेड ब्लड सेल तो नॉन न्यूक्लियर है, बट फर्स्ट स्टेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ओके, तो कैसा होता है, लार्ज एंड ऑक्यूपाइज सेल ऑलमोस्ट कम्प्लीटली. क्लियर. तो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा, लार्ज इन साइज है, कितना है उसका साइज, डायमीटर 20 म्यू. ओके, और उसका न्यूक्लियस कैसा है, लार्ज, ऑक्यूपाइज सेल्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली. ओके, तो हम फर्स्ट देखते हैं. सो न्यूक्लियस हैज़ 2 और more nuclei and a reticular network. सिंपल. न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, 2 और more nuclei. ओके. प्रोइरिथ्रोब्लास्ट डज नॉट कंटेन हेमोग्लोबिन. सो साइटोप्लाज्म कैसा है, बेसोफिलिक इन नेचर. क्लियर. सो multiply several times and finally forms cell of next stage, early normoblasts. फर्स्ट कौन सा, अभी हमने पहले फर्स्ट स्टेज की बात की. ठीक है. फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट. ओके. साइज़ क्या है सेल की, 20 म्यू, लार्ज है. ओके. न्यूक्लियस कितना है, तो लार्ज है और ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई द होल सेल. ओके. न्यूक्लियस कैसा है, तो उसमें क्या है अंदर, 2 और मोर न्यूक्लियर. ओके. सो और साइटोप्लाज्म कैसा है, बेसोफिलिक. ये कुछ पॉइंट है, जैसे डायमीटर, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इसकी हम हर स्टेज में बात करेंगे. ठीक है. हीमोग्लोबिन. ओके. सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट इन दिस स्टेज. किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड स्टेज की, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट. फर्स्ट कौन सा हुआ, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट. अब सेकंड हम देखेंगे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट. ओके. सो लिटल स्मॉलर देन प्रोइरिथ्रोब्लास्ट. वहाँ पे क्या था, 20 म्यू. यहाँ पे डायमीटर क्या है, 15 म्यू. इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डिसअपियर. क्या, डिसअपियर. अपर न्यूक्लियस स्टिल प्रेजेंट है. ओके. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल अकर्स. कंडेंस नेटवर्क बिकम डेंस. साइटोप्लाज्म स्टिल कैसा है, बेसोफिलिक इन नेचर. क्लियर. यहाँ पे तो इसलिए और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सो ऑल्सो कॉल्ड बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट. अब ये सेकंड स्टेज कंप्लीट हुआ. हम एक बार ये दोनों स्टेज डायग्राम में देख लेते हैं. तो फर्स्ट तो हमने देखा कि पहले तो हेमोपोएटिक स्टेम सेल से कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, उसके बाद कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट. अब ये कौन सा, फर्स्ट स्टेज. कौन सा, तो प्रोइरिथ्रोसाइट. इसमें क्या देख सकते हो, 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट है न्यूक्लियस में. क्लियर. अब यहाँ पे सेकंड में न्यूक्लियर एब्सेंट. क्लियर. अब हम देखेंगे थर्ड स्टेज. ओके. इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट. ओके. स्मॉलर देन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट. ओके. इससे भी स्मॉलर, तो कितना, इसका डायमीटर क्या है, सो डायमीटर 10 to 12 म्यू. न्यूक्लियस स्टिल प्रेजेंट, बट chromatin network shows further condensation. Clear. Hemoglobin start appearing. Cytoplasm already
बेसोफिलिक, वैसा ही है, ठीक है। नाउ पहले कैसा था, बेसोफिलिक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इस स्टेज में हमको हीमोग्लोबिन देखना मिल जाएगा, पर सिंथेसिस कौन से स्टेज में चालू हो जाती है, तो सेकंड, कौन से, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इट स्टेन्स विथ बोथ एसिटिक एज वेल एज बेसिक स्टेन, सो दिस सेल इज कॉल्ड एज पॉलीक्रोमेटोफिलिक और पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। क्लियर। अब हम देखेंगे लेट नॉर्मोब्लास्ट। ओके, डायमीटर ऑफ सेल डिक्रीज, हर स्टेज में डिक्रीज होता जा रहा है, अबाउट 8 to 10 म्यू। ओके, न्यूक्लियस कैसा है अभी, वेरी स्मॉल विथ वेरी मच कंडेंस क्रोमेटिन नेटवर्क एंड इट इज नोन एज इंक स्पॉट न्यूक्लियस, सिर्फ इतना सा बच रहा है। ओके, मतलब छोटा सा न्यूक्लियस बच गया अभी। हीमोग्लोबिन कैसा है, तो क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज, साइटोप्लाज्म बिकम्स ऑलमोस्ट acidophilic. Clear? So cell is now called as orthochromic erythroblast. Clear? In final stage, just before it passes to next stage, nucleus disintegrate and disappear. Okay, इस स्टेज में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस disappear, तो उसको हम क्या बोलेंगे, this process is also called as pycnosis. Okay, pycnosis. Clear? अब है रेटिकुलोसाइट, फिफ्थ स्टेज, इसको हम और क्या बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज इमेच्योर रेड ब्लड सेल, स्टिल लार्जर देन मेच्योर रेड ब्लड सेल, बहुत छोटे होते हैं पर स्टिल लार्जर देन मेच्योर रेड ब्लड सेल, आगे के 4 स्टेजेस के कंपेयर में काफ़ी स्मॉल होते हैं। क्लियर। सो साइटोप्लाज्म कैसा है, यहाँ पे कंटेन्स रेटिकुलर नेटवर्क विच इज फॉर्म बाय रेमनेंट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनल। ओके, ड्यू टू रेटिकुलर नेटवर्क इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेटिकुलोसाइट। ओके, रेटिकुलम ऑफ रेटिकुलोसाइट स्टेन्स विथ सुप्रावाइटल स्टेन। ओके, in newborn babies reticulocyte count is 2 to 6% of red blood cells. Okay, फिर after 1 week of birth number of reticulocyte decrease during first week after birth. Clear? Later reticulocyte count remains constant at or below 1% of red blood cell. तो न्यूबॉर्न्स में कितने होते हैं, 2 to 6% ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ओके, इमेच्योर होते हैं यानी, ठीक है। रेटिकुलोसाइट इज बेसोफिलिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेमनेंट ऑफ डिसइंटीग्रेट, हमने ऊपर देखा कि ऑर्गेनल्स डिसइंटीग्रेट प्रेजेंट है। ओके, सो इसलिए यहाँ पे कैसा है, तो रेटिकुलोसाइट इज बेसोफिलिक, साइटोप्लाज्म कैसा है, बेसोफिलिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेमनेंट ऑफ डिसइंटीग्रेट Golgi apparatus, mitochondria and other organelles. अभी mature erythrocyte यानी रेड ब्लड सेल्स, सब उसकी प्रॉपर्टी, रेटिकुलर नेटवर्क disappears and cell becomes mature red blood cell and attains biconcave shape. Clear? biconcave shape कैसा होता है, तो सेंटर से थिनर एंड पेरिफेरी थिकर, इसको और क्या बोलते हैं हम, डम्बल शेप। ओके, सेल डायमीटर डिक्रीज इन साइज कितना, तो 7.2 म्यू। ओके, मेच्योर रेड ब्लड सेल्स इज विथ हेमोग्लोबिन बट विदाउट न्यूक्लियस। ओके, हेमोग्लोबिन होता है बट विदाउट न्यूक्लियस। इट रिक्वायर्स 7 days फॉर डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल फ्रॉम प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ओके, कितने डेज चाहिए होता है, फर्स्ट स्टेज से मेच्योरेशन तक 7 days, रिक्वायर्स 5 days अप टू स्टेज ऑफ रेटिकुलर। 5 days तक कौन से स्टेज में पहुंच जाते हैं हम, 5th स्टेज में। ओके, फिर उसके बाद जो टाइम लगता है वो 5th से 6th में आने में लगता है, कौन से, इरिथ्रोसाइट से मेच्योर, सॉरी रेटिकुलोसाइट से मेच्योर इरिथ्रोसाइट बनने में। क्लियर? अब हम एक बार इसका डायग्राम देख लेंगे। तो फर्स्ट क्या है,
प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स। फिर उसमें से क्या बना, तो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स। देन उस ब्लास्टोसाइट का यूनिट, ओके, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट कौन सा, इरिथ्रोसाइट। सो उसमें से फर्स्ट स्टेज में आए हम प्रो इरिथ्रोसाइट। देन उसमें क्या था, न्यूक्लियर 2 न्यूक्लियस, क्लियर। अब इसमें न्यूक्लियर एब्सेंट, कौन सा स्टेज है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। देन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इसमें क्या है, न्यूक्लियस बहुत छोटा हो गया, ओके। लेट नॉर्मोब्लास्ट, उसमें एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर। देन क्या आया, रेटिकुलोसाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, और इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स, ओके, इसमें एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। देन लास्ट में क्या बन गया, रेड ब्लड सेल, इरिथ्रोसाइट, क्लियर। सो अब हम देखेंगे फैक्टर्स नेसेसरी फॉर इरिथ्रोपोइसिस। फर्स्ट है जनरल फैक्टर्स, सेकंड मैच्योरेशन फैक्टर्स, थर्ड फैक्टर्स नेसेसरी फॉर हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो फर्स्ट हम देखेंगे जनरल फैक्टर्स, उसमें फर्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन। तो वो क्या है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ओके, ऑल्सो कॉल्ड हेमोपोइटिन और इरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ओके, ESF। सो अब देखेंगे इसकी केमिस्ट्री। सो व्हाट इज इरिथ्रोपोइटिन? Erythropoietin is glycoprotein with 165 amino acids. क्लियर। अब देखेंगे सोर्स ऑफ सीक्रेशन, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। कौन से चैप्टर में? तो रेड ब्लड सेल, ओके, फिजियोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वॉच। मेजर क्वांटिटी सीक्रेटेड बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ किडनी, ओके, and small quantity is secreted from liver and brain, okay, small quantity also secreted from liver and brain. Now what is stimulant for secretion? अब किडनी को कैसे पता चलेगा कि अभी हमको इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करना है या सीक्रेट करना है, कैसे? सो हाइपोक्सिया, व्हाट इज हाइपोक्सिया? सो लो ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया इज स्टिमुलेंट फॉर सीक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, क्लियर। Now actions of erythropoietin after secretion. What is actions of erythropoietin? So after secretion it takes 4 to 5 days to show action. After secretion कितने 4 to 5 days लगता है action में, okay. So erythropoietin promotes following process. तो देखेंगे फर्स्ट क्या करेगा? तो प्रोडक्शन ऑफ प्रो इरिथ्रोब्लास्ट फ्रॉम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स ऑफ बोन मैरो, क्लियर। फर्स्ट क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ओके। कौन हेल्प करेगा? इरिथ्रोपोइटिन। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ प्रो इरिथ्रोब्लास्ट इनटू मैच्योर रेड ब्लड सेल्स थ्रू सर्वल स्टेजेस, ऑलरेडी हमने स्टेजेस देख लिए, ओके। रिलीज ऑफ मैच्योर इरिथ्रोसाइट इनटू ब्लड, सिंपल 3 काम किए। फर्स्ट कौन सा? formation of pro-erythroblast from colony forming unit erythroblast, then development of pro-erythroblast into mature red blood cells, and then release of mature then second thyroxine. तो thyroxine क्या है? तो metabolic hormone, okay. Being a general metabolic hormone, thyroxine accelerates process of erythropoiesis at many level. Okay, so hyperthyroidism and polycythemia are common. कैसे? अब hyperthyroidism हो जाएगा, यानी थायरोक्सिन ज़्यादा हो गया ब्लड में, तो थायरोक्सिन किस में हेल्प करता है? इरिथ्रोपोइसिस में। तो क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीज, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पोलीसाइथेमिया। सो hyperthyroidism and polycythemia are common. Then है hemopoietic growth factors. So अब कौन से ये hemopoietic growth factors कौन से? So interleukins and stem cell factor. So these factors induce proliferation of pluripotent hemopoietic stem cell. Okay. Interleukins are glycoproteins which belongs to cytokine families, clear. Then interleukin involved in erythropoiesis. तो कौन से interleukins है? So
First, interleukin 3 secreted by T cells. Interleukin 6 secreted by T cells, endothelial cell and macrophages. Interleukin 11 secreted by osteoblast. Clear? तो अभी हमने क्या देखा? Hemopoietic growth factors. Then vitamins. Some vitamins are also necessary for process of erythropoiesis. Deficiency of these vitamins causes anemia associated with other disease. So कौन से विटामिन्स नेसेसरी है? विटामिन्स नेसेसरी फॉर इरिथ्रोपोइसिस. फर्स्ट है विटामिन बी. सो डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया एंड पेलेग्रा. सिंपल. देन विटामिन सी. इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया एंड स्कर्वी. देन विटामिन डी. इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया एंड रिकेट्स. ओके. And vitamin E, its deficiency leads to anemia and malnutrition. Rickets किस में होता है? Usually in childhood. Okay. So अब हम देखेंगे maturation factors. उसमें कौन से? विटामिन B12, intrinsic factor and folic acid. First है विटामिन B12, cyanocobalamin. Okay. Source called extrinsic factor since it is obtained mostly from diet. Okay, simple. Its absorption from intestine requires presence of intrinsic factor of Castell. Vitamin B12 stored mostly in liver and small quantity in muscle. When necessary, it is transported to bone marrow to promote maturation of red blood cells. तो किस में हेल्प करता है ये? maturation of red blood cells. Okay. Action क्या है अब? विटामिन B12 essential for synthesis of DNA in red blood cells. Clear? So deficiency leads to failure in maturation of cells. तो किस में हेल्प करता है? तो DNA, synthesis of DNA in red blood cells. So deficiency leads to failure in maturation of cells. Clear? Also, cells are larger with fragile and weak cell membrane resulting in macrocytic anemia. Macro का मतलब क्या होता है? Large. Okay? So, deficiency of vitamin B12 causes pernicious anemia. So, vitamin B12 is also known as एंटी पर्निशियस फैक्टर. ओके. अब देखेंगे हम इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टेल. ओके. प्रोड्यूस्ड इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा बाय पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड. ओके. क्लियर? एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 हमने अभी देखा. ओके. फ्रॉम इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन हेल्प करता है किसके? तो विटामिन B12 के. In absence of this factor, vitamin B12 is not absorbed from intestine. So this leads to pernicious anemia. Deficiency of these factors occurs in severe gastritis. Okay, क्यों? तो एब्जॉर्प्शन ही ठीक से नहीं हो पाएगा अगर लाइनिंग में गैस्ट्राइटिस या अल्सर, इन्फ्लामेशन या अल्सर होगा तो. ठीक है. सीवियर गैस्ट्राइटिस. गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा. ओके. देन अल्सर. देन गैस्ट्रेक्टॉमी. ओके. अब हम देखेंगे फॉलिक एसिड. एसेंशियल फॉर मैच्यूरेशन, रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA. In absence of folic acid, synthesis of DNA decrease causing failure of maturation. हमने सेम किस में देखा? विटामिन B12 में. ओके. This leads to anemia in which cells are larger and appear in megaloblastic. ओके. पर ये कौन सी स्टेज में? प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज. ओके. Anemia due to folic acid deficiency called megaloblastic anemia. Clear? Then factors necessary for hemoglobin formation. Such factors are first class proteins and amino acid,
high biological value are essential for proteins which have high biological value are essential for formation of hemoglobin. Amino acid derived from these proteins are required for synthesis of protein part of hemoglobin. Okay, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन. तो उसमें प्रोटीन और अमाइनो एसिड एसेंशियल है फॉर्मेशन के लिए. ओके, सो सेकंड है आयरन, नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीम पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन. क्लियर? ओके. थर्ड है कॉपर, नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम जीआईटी. कॉपर क्या हेल्प करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम जीआईटी. अब आयरन आ तो गया, अब कॉपर नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो सारा आयरन वेस्ट चला जाएगा. सो कॉपर इज एसेंशियल. Then cobalt and nickel. These metals are essential for utilization of iron during hemoglobin formation. ये क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा. ये मेटल्स क्या करेंगे? यूटिलाइजेशन में हेल्प करेंगे. ओके. विटामिन्स, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, पायरोक्सिन, ये सब क्या है? एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन. सो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है. So please subscribe.